Mr. Akarshan Sethi, who is an experienced consultant with a demonstrated history of working in the government domain, startup ecosystem, consultancy events, and technical services industry. He is the account manager of Meet India, a startup community evangelist, a startup speaker, and a mentor of change at the Atal Innovation Mission and Startup India. Sir has also been the advisory body of Incubation Center of Indian Institute of Management, Shillong. Today, we will be having a session or a workshop on intellectual property rights, that is IPRs, and IP management for startups. We are welcoming you, sir. Over to you. Thank you so much, Ritika. Pleasure to be here with IIM, with one of the prestigious colleges of India. And first of all, Ritika, thank you so much for approaching me and inviting me as well. And again, would like to thank ECEL IIM for the same. So guys, I'm not going to do that kind of a boring shit that I'm going to share my presentation, share my screen, taking you through going one side journey. I hate it. I simply hate it. Okay, I want it to be as interactive as possible. I know Vidika told me that there have been few questions which have been collected, and probably we would have a live interaction session. But I would want live interaction session from start itself. Okay. So we will be going forward about it. But before going forward, I can see there are 35 odd people who have joined. I would really like to know, how many of you are there who have either started up their own startup or are aware about the startup journey, or even if you have your own set of business. Anyone, like maybe you can just raise your hand or send a message in the chat option. Anything on those lines? Anyone? Okay, one I can see is Udayveer is there. Okay. Who else? Okay, there are 4 people. Udayveer, Nitish, Pritika, Mohit. Come on, guys. Out of 35 people, IIM के बच्चे ऐसे थोड़ी होते हैं यार. IIM people are like super fabulous people. 7, 8, okay, 9. I need to tell you about your values. Entrepreneurship तुम्हारे खून में होना चाहिए. It should be in your blood. Come on. Okay, 10, 11, 12. मतलब थोड़ा और motivation दूंगा तो और धीरे-धीरे hands raise होंगे ऐसा. Okay, cool. So good. Like I can see probably there is a percentage of 20, 25, 30 people, 30 percent people who have either started up their own startup or probably are aware about the startup journey and so on and so forth. So before talking about IPRs, before talking about patents, copyrights, trademarks, I'm pretty sure ये basics सबको पता होगा. I know what questions you are going to ask me. But before talking about those particular questions, talking about how we can file a patent, what is a national patent, what is international patent, what types of patents are there, blah, 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 blah. First question to all of you who specifically have raised their hands, for them one, and who haven't raised, also for them. This question goes for everyone. Again, you can message, okay, in the chat box, or probably raise your hand and unmute yourself. What is a startup? What do you think that कि मैंने ये चीज start करी और मैं इसको अब startup बोलूँगा? What, or probably let me put another way to this. What is the first step when you start a startup? कि आपको लगता है कि ये चीज अगर मैंने this is the first important stuff to start a startup. What is the first thing when you think about starting up a startup or probably a startup? Anyone? Okay, Ankita is saying having an idea. Okay, who else? Anyone? Sir, may Yeah, please go on. so I think Udayveer, you went on mute by chance, I believe. yes. Am I audible? Yeah, you are. Sir, so I think a startup is not just starting a business. It's about solving a problem. A Okay, problem which first we have to identify the problem society is facing, not individual problem. Problem should be society's problem. First we identify the problem, then we have to innovate the idea to how to solve the problem. Okay, got it. Okay. If we find out the idea, then we have to go like how to implement it and what are the factors affecting and why
एंड वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी लोगों को क्यों नहीं किया ये सब, मतलब जो आइडिया हमें आ रहा है ऐसा तो है नहीं कि हम पहली बार दुनिया में आए हैं, बाकी लोगों को भी आइडिया आया होगा, बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए ये प्रॉब्लम, बाकी लोगों को आ रही है, उन्होंने क्यों नहीं सॉल्यूशन दिया। तो वो जो फैक्टर्स हैं वो मेरे को लग रहा है बहुत क्रिटिकल्स होते हैं किसी Very भी good answer. स्टार्टअप। Very good answer. 75% given to you. 25% remaining. थैंक यू सर। Problem is the first particular thing. Agreed. कि problem है. Definitely. Like, and I can see a lot of people have mentioned product, capital, innovative business idea, having an audience for the idea, finding issues, designing, conveying, attracting, sales. Like I am value to marketing, sales, everything, business management, everything you should know. Perfect, correct, absolutely understandable. And Uday, you said one more important stuff that कि लोगों ने क्यों नहीं वो चीज पहले प्रॉब्लम देखी या वो स्टार्ट करी या सॉल्व करा. बट कैन एनीवन टेल मी अगेन, प्रॉब्लम इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंडेबल, बट क्या वो प्रॉब्लम को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो उससे पहले मेरे को क्या करना चाहिए? So the first foremost important step, and this is very important guys, when you are going for your IPRs, okay, when you are going to file your patents, when you are going to file your copyrights, when you are going to file for any of those thoughts, the first more important thing is problem identification. Okay, then you go for problem validation, then you go for idea identification, and then you go for idea validation. These are the four important factors, and I'm telling you because I have literally worked with the Startup India team, Government of India, and we went, मतलब हम लोगों ने शायद कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं था जो पूरे इंडिया में हमने छोड़ा हो. We have almost covered every district. I personally covered around 100, more than 100 districts and more than 12 states, and I can literally vouch you for that. That a lot of many times हमारे को ऐसा लगता है कि हमने मशीन बना दी, एक ड्रोन बना दिया, एक वंडरफुल स्ट्रैटेजी बना दी, एक मार्केटिंग कैंपेन बना दिया, ये मैं इसको मैं पेटेंट करा सकता हूँ, इसको मैं कॉपीराइट करा सकता हूँ, ये इनोवेटिव थिंग है. नो, कंप्लीटली रॉन्ग. ऐसा कुछ नहीं होता. पहले देख तो लो कि वो जो प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई करी, क्या वो एक्चुअली में प्रॉब्लम है. उदय वाज राइट कि प्रॉब्लम देख तो लो कि वो सोसाइटी फेस कर रही है कि नहीं. हो सकता है you only might be facing the problem. It might be there that you have like 7 subjects right now, you are really good with the 6 of them, maybe you are not good with economics or business studies or maybe accounting, maybe one of the subjects is actually not your strong point, but इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम सोसाइटी के लिए. हाँ, देखो कि वो आपके बैच में, क्या दूसरे बैचेस में भी वो प्रॉब्लम है, क्या लोगों को एक्चुअली में इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, क्या लोगों को एक्चुअली में अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, क्या लोगों को एक्चुअली बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है. देन यू गो, then you are actually solving a problem, a niche problem of the people who are going for MBA and having an issue or problem of maybe statistics, economics and whatnot. वो एक society problem है, niche problem but a society. So that is the very, guys, ये याद रख लो सबने. I think so सबने food chain पढ़ी होगी, right? 4th 5th में there is like one person, mammal eating, animal eating, something ऐसे ये पूरा चलता रहता है. This is a cycle. Something similar to a startup is same, and trust me, this is very useful for all of you, because you, after doing your post graduation, I am pretty sure whichever company you are going into, an enterprise company, you are going into big corporates, you are actually working for a startup or creating your own startup, every time it will be happening कि आपसे बोला जाएगा कि यार मेरे को ये चीज सॉल्व करके दो, मुझे ये चीज का आंसर चाहिए. Maybe the board people will ask you, maybe the leadership team will ask you, maybe people will actually look up to you, people will actually lead up to you कि यार okay, Uday, okay, Prashant, Nitish, Ritika, how can I solve this problem? So first you need to analyze कि okay, what is that actual problem? वो क्या हवा में प्रॉब्लम बोली जा रही है, वो एक्चुअली में प्रॉब्लम है. आज सबने सुना होगा नोएडा की ट्विन टावर्स बिल्डिंग डिमोलिश हुई.
मीडिया ने उस पर इतना बड़ा हाइप किया हुआ, क्या वो एक्चुअली सोसाइटी की प्रॉब्लम है? नो, नो, राइट? इट्स जस्ट ट्विन टावर्स गेटिंग डिमोलिश्ड. मतलब इतना हाइप क्यों बना के रखा है? और पीपल आर एक्चुअली, पीपल आर क्लैपिंग फॉर इट, मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि डिस्ट्रक्शन पे लोग कैसे खुश हो सकते हैं, right? So these are very important stuff which we need to understand, that क्या problem है society के. And you name any big startup, okay, any big startup in India, irrespective of their business model, irrespective of their financials, irrespective of लोग बोलते हैं कि कुछ लोग यार लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं. People have their own point of views, but they are solving a certain problem. You take any good startup, you take Oyo Rooms, they have solved a problem, right? You take Ola Cabs, they have solved a problem. You take Paytm has solved a problem. You take Byju's has solved a problem. So every startup has somehow or the other solved a problem, and that is what a person, the society expects from you as an entrepreneur. Okay, so this is like the foremost important thing. Okay, चलो अब एक second question मेरा, ठीक है? And guys, I want you to answer, right? Like, I really want you to participate. Please मेरे को बोर मत करना. अगर मैं बोर हो गया, मैं छोड़ के चले जाऊंगा 15 मिनट के अंदर, ठीक है? फिर बितिका लेक्चर देगी मेरी जगह पे. Okay, cool. So guys, the second question to all of you: what do you understand by the word named as patent? What is patent according to you? What do you think? Anyone can write down a message, can tell me, because I expect a lot of things from you, but I would correct you where you are going wrong, or what is your understanding. Okay, and I'll be practical. I would not be theoretical. I would not be telling you something from Google or YouTube और जो books में पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं. मैं ये बताऊंगा कि practically लोग क्या कर रहे हैं और उसमें क्या क्या चीजें होंगी. Okay, guys, come on. When you hear about patent, what do you think? What is patent? Okay, 2 people have raised their hands. Bitika, Prashant, anyone else? A right to an idea. Okay. Anyone? Odeveer, okay, he has done it. Anyone else? Okay, I'll give this chance to Prashant right now. Prashant, go ahead. Yeah. If a company or if an individual like develops an idea or innovation and he wants to like keep it exclusive, so the way to do is patenting it. The way to do is कि exclusively आपने अपने पास रखना है तो patent करवा लो. Okay, perfect. Anyone else would like to maybe correct Prashant or maybe add on to what Prashant said? Anyone else? Sir, maybe it's a legal tool to protect our idea. Maybe a legal tool to protect our idea. Okay, perfect. Thanks, Chetan. अरे कोई तो बोलो, क्या सारे क्या नींद में हो? 5:30 हो रहे हैं या सारे वेट कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच खत्म शुरू हो और हम लोग एक छोड़ के जाएं वेबिनार? मेरे को भी देखना है यार. 6:30 तक कुछ नहीं होने वाला, 7 o'clock तक. डोंट वरी, टॉस भी नहीं होना. ओके, अंकिता, गो अहेड. व्हाट डू यू थिंक? So it's like the sole right of ownership or the sole right of using a particular product which is being made by that particular individual. ओके, ये तो यार थ्योरेटिकल हो गया. ये तुम तीनों ने जो आंसर दिया वो थ्योरेटिकल है, गूगल पे यही लिखा है. आगे बताओ, व्हाट एल्स? अच्छा चलो थोड़ा सिंपलीफाई वे में मुझे कोई नॉर्मल, मैं ट्रस्ट मी व्हेन आई से आई एम कमिंग फ्रॉम बैकग्राउंड जिसको पेटेंट के बारे में पता. मुझे लेमैन टर्म्स में किसी को एक्सप्लेन करना है, क्या कैसे एक्सप्लेन करोगे? हाउ वुड यू एक्सप्लेन? ओके, उदय, आई विल कम टू यू. आई एम नॉट कमिंग टू यू बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड. आई वांट एवरीवन एल्स टू. फिर उसके बाद आएंगे, फिर रिपीट करेंगे. मोदित, गो अहेड. So patent is like monopolizing an idea or a prototype. Okay. Okay. ठीक है. So guys, you all are right. Theoretically, you will get 100 out of 100. Practically, might be not. Might be not. बहुत simple. See, पहली बात, आप लोगों को पता है, चलो इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन. Does anyone know, अगर मैं पेटेंट कराता हूँ कितने टाइम के लिए मेरे पास पेटेंट वैलिडेटेड रहता है? अगर मैंने एक बार करा दिया, for how long it will be with me? गूगल से देखकर कोई बताया ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ. मैं बितिका,
उनको सबको निकाल देना ई सेल से, पार्टिसिपेट नहीं करने देना आगे किसी को भी, लाइफ टाइम। ओके नितिश, वेरी गुड। और कौन है? अंकिता, आई वोंट लेट यू। Sir, 20 years. Aditi, how did you know 20 years? Google? No, no, no. अच्छा, you knew? Okay, good. So yeah, so lifetime के लिए नहीं होता guys. When you hold a patent, okay, it is only for 20 years. It is not for lifetime. तो आज अगर मैं कोई इन्वेंशन कर रहा हूँ 2042 के अंदर, मेरा वो कोई भी आइडिया कॉपी कर सकता है, चुरा सकता है, इट्स ओके। मैं 2042 में जाके मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा चलो, अब एक और क्वेश्चन, ये इसके लिए मैं कहता हूँ, इसके लिए आई विल गिव यू 2 minutes, ठीक है? You have to research and I would like to see the quickness of you guys over here. Everyone is using a mobile, right? Like सबके पास एक या तो अच्छा सा iPhone होगा to show off, और probably एक Android होगा to show off its features. Something on the other. सबको पता है फोन के अंदर एक एंटीना होता है जिससे कॉल होती है, राइट? एंटीना का किसी ने पेटेंट कराया, ठीक है? मुझे ये 3 चीजें देखकर बतानी है आप लोगों ने। पेटेंट किसने कराया? आई विल गिव यू अ क्लू, ही इज एन इंडियन, ठीक है? पेटेंट किसने कराया, कब कराया, और उसको आज के टाइम पे उसको क्या मिल रहा है? क्या उसको एक रॉयल्टी फी मिल रही है? कितनी मिल रही है अगर वो मिल रही है तो? ठीक है, मुझे ये 3। You have 2 minutes. Google it out. Let me check the speed of the people. किसी के पास आंसर? Anyone who has an answer, they can raise their hands. Anyone, guys, anyone? अच्छा, कौन है ओनर पेटेंट का, ये तो बता दो। Okay, Sir, Mohit. Anand Kannan Okay, and Tejas Bhatt. okay. 2004 में इन्होंने पेटेंट इशू करवाया था। Okay. Who else? Anyone else? Anyone else, guys? Come on. थोड़ा सा और जोर लगाओ। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, मिला नहीं मिला कोई? गूगल करने में भी इतना टाइम? ओके, 1 minute more to go, guys. I'll give you 1 minute more. 5:24 हो रहे हैं मेरे लैपटॉप पे, 5:25 पे I would end it. Fine. Yes, क्या sir. रुका? Oh. Thank you. नहीं मिला कोई? गिव अप? अरे गिव अप कर रहे हो तो बोल सकते हो। मुझे ने तो बोल दिया नहीं मिला। मुझे तो वाज लाइक प्रीटी मच क्लियर। आई लाइक द आंसर, मुझे गुड जॉब।
नहीं मिला सर। चलो ठीक है। ओके, पहली बात तो मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था, थोड़ा सा। No Indian is there who invented antennas. Okay. So there is a person, इसके बारे में शायद आपने सुना होगा, मिस्टर मार्कोनी, मिस्टर जी मार्कोनी। उन्होंने टेलीकम्युनिकेशंस रेडियो ही इन्वेंटेड किया और उन्होंने फर्स्ट वायरलेस ट्रांसमिशन शुरू करा था। बट अब मैं इसकी एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। उन्होंने ये सारी चीजें बनाई थी, बट उस टाइम पे उन्होंने पेटेंट नहीं करा था। इट वाज आई थिंक सो 1930s। आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टोरी, बट मेरे को भी किसी ने चीज बताई है, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। 1930s के टाइम पे उन्होंने जब ये बनाई थी चीज, तो 1970 तक लावारिस था वो चीज। किसी ने और ने वो लोगों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जरूर करा, किसी ने पेटेंट नहीं करा। 1971 के अंदर there was one Indian guy from Kerala, I don't remember his name, but that particular person filed the patent, and in 1991 तक 20 years तक, ठीक है, 20 years तक that person was eating royalty। और उस टाइम पे मोटोरोला और जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनसे, एप्पल, इन सब से he was eating royalty। and from 1991 he came into an agreement with all the big, now कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो भी एक फोन हैंडसेट बनाएगी, उसको दैट केरला पर्सन और उसकी फैमिली को आज तक रॉयल्टी मिलती है till today, even from 1991 till 2022, 31 years हो गए। क्यों? क्योंकि वो एक इन्वेंशन ऐसा था कि उसके अंदर लाइफ टाइम, अब जैसे बहुत सिंपल रहता है। अब आप लोग पूछ सकते हो कि सर आपने बोला कि वैलिडिटी एक पेटेंट की 20 इयर्स तक रहती है, राइट? करेक्ट। एक हम लोग डोमेन खरीदते हैं जैसे www.google.com है, एवरी ईयर इट गेट्स एक्सपायर्ड, एवरी टाइम गूगल पीपल हैव टू बाय आउट। अगर वो नहीं बाय आउट करेंगे, बाय चांस वो विंडो 5 सेकंड्स की विंडो में किसी और ने खरीद लिया, तो गूगल को उसको शायद डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स पैसे देने पड़ेंगे। एंड यू मस्ट हैव हर्ड केसेस अबाउट कि डोमेन किसी ने बाय आउट कर लिया मीनवाइल और लोगों को एक्स अमाउंट देना पड़ गया उसका। एंड ऐसा होता है, लोग डोमेन्स को अपना बिजनेस बना लेते हैं, डोमेन सेल ऑफ करने को बिजनेस बना लेते हैं। सो उसकी वजह से उस बंदे ने क्या करा, उस टाइम पे उसने ये लूप होल करा। हर्षद मेहता सबने सुना होगा, हर्षद मेहता ने भी एक लूप होल केस की वजह से उसने अपने आप को इतना ग्रो करा है। इस पर्सन ने भी बोला कि ठीक है यार, लाइफ टाइम आप मुझे 20 इयर्स के लिए दे रहे हो, मुझे लाइफ टाइम पेटेंट ग्रांट नहीं कर रहे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट मैं उसको हर ईयर, क्योंकि मेरा वो पेटेंट है, हर ईयर मैं रिन्यूअल फीस देकर टाइमली मैं इसको अपने पास तो रख सकता हूँ। इस रिन्यूअल फीस को उस टाइम पे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आईपीसी में कहीं पे भी नहीं था, सो गवर्नमेंट ने सिर्फ उस पर्सन को अलाउ करा। उसके बाद से ये चीज भी अलाउड नहीं होगी। और ये अब टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है, देयर इज नो रिन्यूअल फी, नथिंग लाइक दैट, एनीवन कैन कॉपी योर आइडिया आफ्टर 20 इयर्स। बट वो और उसकी फैमिली आज तक पैसा खा रही है हर कंपनी से, वेदर इट्स मोटोरोला, वेदर इट्स एप्पल, नोकिया, सैमसंग, OnePlus, you name any brand. So this is also very smart move. But guys, copy जब आप करते हो, अब आप मेरे से एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो, and again this might be a common question to all of you, कि सर उबर और ओला तो सेम है, उबर और ओला इज सेम, जस्ट द ब्रांड नेम इज डिफरेंट। ब्रांड नेम के बारे में तो यार मैं ट्रेडमार्क या कॉपीराइट में खेल सकता हूँ ना, मतलब उसमें पेटेंट करवाने लायक क्या चीज है? उबर ऐसा क्या पेटेंट करा रहा है, उसका ऐसा क्या प्रोसेस है, क्या वर्कफ्लो है कि वो एक अलग कर रहा है और ओला एक अलग कर रहा है? एंड यू नो गाइज व्हाट दे हैव एक्चुअली, दे एक्चुअली हैव द पेटेंट्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। और उन्होंने क्या करा हुआ, उन्होंने मैप्स, जो उनके इनबिल्ट मैप्स है उस पे पेटेंट्स करवा रखे, उसकी एप्लीकेशन पे करा रखे। आप XYZ करके आप 10 सेम कैब्स खोल दो। कितनी बीच में कैब्स खुली थी जब ये ओला उबर कितना चले थे, जो कैब्स एंड पता नहीं कौन सी कैब्स। आई एम श्योर एवरी डिस्ट्रिक्ट सिटी आल्सो हैज सम काइंड ऑफ लोकल कैब सिस्टम एज वेल, बट क्या उनके पास पेटेंट्स है? नहीं, इनके पास पेटेंट्स है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर, अपने मैप्स में पेटेंट करवा दिया कि हमारे जैसा मैप कोई नहीं बना सकता।
इस मैप में कोई ऐसा नहीं लिख सकता, इस मैप में वैसा नहीं कोई लिख सकता। अब इन्होंने मैप्स के साथ भी अब इन्होंने अपना इवन इफ यू गो ये जो होंडा है, ह्यूंडई है, बिग बिग कार्स है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू एंड ऑल दैट, इनके भी अपने इनबिल्ट मैप्स होते हैं इनकी कार्स में। अगर आप लोगों ने चेक करो जो ऑफलाइन बिल्ट मैप्स होते हैं, उन्होंने उनके पेटेंट्स करा रखे, क्योंकि पेटेंट्स कैन बी ओनली it's not exactly on the workflow, but it can be on your software, it can be on your hardware. एक plant patent होता है, plant is basically for botanist people, ठीक है, जिनके लिए होता है। so जितने भी जैसे कोई हाइब्रिड प्लांट आप ग्रो करते हो, बनाते हो, आप उसके लिए कर सकते हो। एक होता है यूटिलिटी पेटेंट। सो एज द नेम सजेस्ट, कोई भी आप यूटिलिटी बनाते हो, किसी चीज को आप सिंप्लीफाई करते हो, या एक सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर आपने एक और सॉफ्टवेयर बनाया, सिंप्लीफाई करा प्रोसेस, आप उसका आगे पेटेंट बना सकते हो, ठीक है। सो आप पेटेंट्स आप बना सकते हो। एंड गाइस इन स्टार्टअप पेटेंट्स के ऊपर इनफैक्ट कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स का भी अपना होता है, बट पेटेंट्स के ऊपर 80% योर वैल्यूएशन डिपेंड्स। Even if you have a provisional patent today, provisional patent मतलब आपको अभी ग्रांट नहीं हुआ है पेटेंट का, बट आपको एक प्रोविजनल पेटेंट मिल गया, प्रोविजनल पेटेंट मिल गया अभी आपको, ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि हाँ ये प्रोसेस में है, इसको अभी हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं, बट आपको 1 ईयर के लिए प्रोविजनल पेटेंट देते हैं कि जब तक आपका पूरा प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो जाता, ठीक है, 1 ईयर का टाइम दिया जाएगा, आपका ये कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। और उसके बीच में आपने स्टार्टअप खोल दिया तो उस प्रोविजनल पेटेंट पे भी यू विल गेट क्या बोलते हैं, गुड वैल्यूएशन। चाहे आपका कोई और बिजनेस मॉडल आपके स्टार्टअप में चल रहा हो, या आपका स्टार्टअप में आपने खुद से 20 lakhs 50 lakhs व्हाटएवर आपने लगाया हो। सो बेसिकली इट्स ऑन दैट। अंकिता, यू आर एब्सोल्युटली राइट, नेचुरली अकरिंग प्लांट कैन नॉट बी पेटेंटेड क्योंकि वो नेचुरल है, बट अगर आप हाइब्रिड, दैट्स व्हाई आई टर्म्ड इट एज हाइब्रिड, अगर आपने उस प्लांट के साथ आपने एक और प्लांट मिक्स करके थर्ड काइंड ऑफ अ जनरेशन प्लांट आपने बनाया जो कि एक हाइब्रिड मॉडल था, उसको आप जरूर पेटेंट करा सकते हो। एंड यू आर यूटिलाइजिंग पेटेंट्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, बिकॉज सबने शार्क टैंक जरूर देखा होगा। शार्क टैंक पे सबने एक शार्क टैंक इंडिया में अभी बहुत फेमस हुआ था, वो जो ग्लास के ऊपर जो वो था जिपर, आई थिंक सो कुछ जेड से नाम था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड काफी बेइज्जती करी थी अश्नीर ग्रोवर ने इसको कि भाई तू कर क्या रहा है, ये वो एंड ऑल दैट। सिपलाइन, करेक्ट मोहित, थैंक यू। सो सिपलाइन के ऊपर बहुत लोगों ने, एंड एस नहीं था, आई थिंक सो जेड था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी हो सकता है एस था, बट उसके लिए उसने बोला कि मैंने प्रोविजनल पेटेंट करा हुआ, उसका पेटेंट रिजेक्ट हो गया। उसका पेटेंट इसलिए रिजेक्ट हो गया कि क्या ये यूजफुल है फॉर सोसाइटी, इज इट एक्चुअली यूजफुल। उसको ट्रेडमार्क्स मिल गया, उसको कॉपीराइट्स मिल गया, उसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल गया, बट उसको पेटेंट नहीं मिला। रीजन, क्या ये सोसाइटी के लिए यूजफुल है, क्या ये एक्चुअली किसी के लिए यूजफुल है। सो ये प्रॉपर ट्रायल होते हैं गाइस, लिटरली आपको कोर्ट में जाके सबमिट करना पड़ता है। सो पेटेंट की जब आप फाइल सबमिट करते हो, सबसे पहले सिंपल स्टार्टअप के जैसे, व्हाट प्रॉब्लम इज इट सॉल्विंग, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए कर रहा है। आप 30 पेजर की आप डॉक्यूमेंट बनाओ या 150 पेजर की आप एक डॉक्यूमेंट बनाओ। 150 पेजर इज बेसिकली फॉर द कंपनी जिसमें एक प्रॉपर टीम होती है, वो बनाती है 150 की। अगर आप एक इंडिविजुअल बना रहे हो, 30 पेजेस की एक डॉक्यूमेंट बनाएगी एंड आपको वो गवर्नमेंट को पब्लिश करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स के साथ आपकी एक मीटिंग सेट करेगी, आपको बुलाएगी पेटेंट ऑफिस या किसी कोर्ट में, आपका ट्रायल लेगी कि अच्छा क्यों करा है, कैसे करा है, कहाँ करा है, किसके लिए करा है, कौन से लोगों के लिए, क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वैल्यू क्या है, इससे आगे लोग कितना पैसा बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इवन इफ, प्लीज एक मिथ है बहुत बड़ी, even if you are an innovator today, you cannot be a good entrepreneur. If you are a good entrepreneur, it doesn't mean that you are going to be a great inventor. Simple terminologies, not every scientist is an entrepreneur today, and not an entrepreneur today is a scientist. Okay, so इसका मतलब ये नहीं कि आपने पेटेंट बना लिए या आपने एक बहुत सेक्सी सा प्रोडक्ट बना लिया and you are like I am now going to become a unicorn, I am now going to become Elon Musk. It never happens. ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हमारे को लगता है हमने एक नई चीज बना ली, एक नया प्रोसेस बना लिया, हमारे को प्रोविजनल पेटेंट, हमारे को पेटेंट भी शायद ग्रांट हो गया। इट डजंट मीन, इट्स गुड टू हैव
It's something you have done something good for yourself and for the society. It's a skill. It's an additional added skill in your resume, nothing more than that. Until unless you are actually making it useful for the people out there. और इसका मैं एक बहुत एग्जाम्पल की तरफ से मैं अगर बताऊं, IIT Delhi, I'm talking about IIT Delhi because I'm very closely associated with FITT, IIT Delhi. उन्होंने 2020 के अंदर 400 patents, more than 400 patents उनको ग्रांट हुए थे in 2020 by Government of India. More than 400 in fact. But क्या 400 में से कितने स्टार्टअप्स बने? Just 2 startups. Just 2 startups out of 400 patents. उसका रीजन बहुत सिंपल, लोगों ने उसको एक एक्टिविटी बना लिया था अपने करिकुलम में कि हम लोग 3rd 4th ईयर में कुछ नई मशीन बना देंगे, कुछ प्रोडक्ट बना देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे. उन्होंने यूजफुल भी दिखा दिया कि लोगों की हेल्प करेंगे, बट क्या उसका बिजनेस मॉडल बन पाया? क्या उसका फाइनेंशियल मॉडल बन पाया? गाइस, आई एम ट्रस्टिंग यू. ये मैं IIT वालों को नहीं बोल सकता या ये मैं टेकी को नहीं बोल सकता, बट आई एम ट्रस्टिंग यू दैट you being a person in the business management, being an IM person, you guys will actually make things happen. कि जब आप एक इन्वेंटर को अपने साथ पकड़ोगे, उसका बिजनेस मॉडल बनाओ और फिर उसका बाहर मार्केट में सेल करो, then you will become an entrepreneur. Even if you have created an invention yourself, don't think you are going to be the next Elon Musk. This is actually a myth and this is very discouraging for you. Trust me when I say this. इसका एक और बहुत सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ. स्टार्टअप इंडिया के स्टेटिस्टिक्स ये कहते हैं कि एवरी डे देयर आर 200 स्टार्टअप्स born in our country. Every day born in our country मतलब लोग रजिस्टर करा रहे हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड, LLP, कुछ ना कुछ करा रहे हैं एवरी डे. पर आपको पता है एवरी डे आउट ऑफ 200 स्टार्टअप्स, मतलब नॉट दोस 200 बट या एवरी डे 190 स्टार्टअप्स आर आल्सो गेटिंग शट डाउन. So the success ratio remains anywhere between 2 to 5% for a startup to get funding, to generate employment, to go for Series A, Series B funding and all that. और उसका बहुत again उसका simple reason, जो मैं first point पे वापस आऊंगा, कोई भी बंदा problem identification, validation नहीं करता. You think that you have got a great idea, but have you gone to the market and spoke to the people? If in case you think that your product is actually for B2C, have you actually gone out and talked to the people who are going to use it? Even if it's just a toothbrush. क्या वो रोज जो आदमी ब्रश कर रहा है उसका आपने मान लो पेटेंट करा दिया कि यार इस तरीके से आप ब्रश करोगे, बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट निकलेगा. लाइक फॉर एग्जांपल वो ऑटोमेटिक ब्रश जो 2002-2005 में आई थिंक सो चलना शुरू हुआ था इंटरनेशनली. अब now everyone buys it 250 500 rupees 5000 50000 ऐसे वो ब्रश आने शुरू हो गए. बट क्या वो ब्रश हर कोई खरीद सकता है? क्या वो ब्रश के फायदे हैं? कितने लोगों को आपने देखा वो ब्रश यूज करते हुए? In India hardly any household does that unless again it's a show off symbol more, but it's not an essential item. Okay, in maybe in US, China, there the people does it, right? China mein again, China is the #1 country in terms of patent filing. Okay, #1 country. Second US aati hai. India comes in like 9th or 10th right now. I'm not sure about the recent one, but yeah, first quarter of 2022 तक ये था. तो क्या इसका मतलब ये है कि चाइना ग्रेट है? Obviously, we hear a lot of good things about China, but in terms of business, we always hear good things about US, not China. Okay? उनका रीजन वही है कि यार यूएस लोग चाइनीज लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं और उनसे बिजनेस करवाते हैं. ठीक है, उनसे अक्रॉस वर्ल्ड बिजनेस करवाते हैं. UK is a great country, right? Like probably a great area to be precise, not country, but yeah. UK में अगर आप देखोगे तो UK is one specific region जहाँ पे सबसे कम पेटेंट फाइलिंग्स होती है, लेकिन बिजनेस उनका फ्लरिशिंग होता है. एवरी ईयर, इवन लॉकडाउन में वो UK अपना बिजनेस चला रहे थे. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो कहते हैं हमारे को जान प्यारी नहीं है, हमारे को पैसा चाहिए, हमारे को धंधा चाहिए, हमारे को बिजनेस चाहिए. इट्स ऑल अबाउट business at the end of the day. So please, whenever you are making sure you're filing a patent, it's very important
कि उसका बिजनेस प्रोस्पेक्टिव भी लेकर चलना कि क्यों फाइल कर रहे हो। रेज्यूमे में ऐड करना है, ऐड करके ऑथर बनना है एक पेटेंट फाइल का, ठीक है, गो फॉर इट, जस्ट शो इट एज अ प्रोजेक्ट, डोंट शो इट एज अ स्टार्टअप। If you want to go for a startup, guys, you are coming from a business background altogether. I want you guys to work on that particular thing कि इसको बेचेंगे कैसे आगे मार्केट में। आपके तो यहाँ पे आपको सेल्स के पर्सन मिलेंगे, मार्केटिंग के मिलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स के मिलेंगे, आपको हर बिजनेस ऑपरेशंस के मिलेंगे, आपको हर कोई आपके ही बैच में मार्केटिंग के डिफरेंट वेरियस वर्जन्स मिल जाएंगे। उसके इकोनॉमिक्स पकड़ो, उसके अकाउंटेंसी पकड़ो, उसके बिजनेस स्किल्स पकड़ो, उसके मतलब जस्ट गो फॉर इट, but with the right set of targeting the right people basically, ठीक है। so this is very much important. so patent जब आप फाइल कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि आप अपने 30 पेजर में बिजनेस का भी 1 पेजर एड ऑन कर दो। गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने वो एड ऑन करा नहीं करा, लेकिन आपके लिए इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल बी अ पिच डेक गोइंग फॉरवर्ड फॉर यू एज अ स्टार्टअप, एज एन एंटरप्रेन्योर। ओके, any doubts so far guys? I know मैं बहुत बोल गया, 10 मिनट से बोली जा रहा था। अब कोई doubts? Anyone has anything to ask me regarding patents? Anyone? Yes, actually I have one doubt. अगर Yes. मान लो हम कोई प्रोडक्ट पहले से यूज कर रहे हैं बट हमारे पास उसका पेटेंट नहीं है, बट समवन एल्स पेटेंट दैट प्रोडक्ट, तो क्या हमें उससे परमिशन लेनी पड़ेगी उसको कंटिन्यू करने के लिए, उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को? उस प्रोडक्शन को अगर आप अगेन उसको आप सोसाइटी में बेच रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू अ लाइव एग्जांपल, लेट्स जस्ट से प्रशांत और मैं, ठीक है, मैं उस प्रोडक्ट पे काम कर रहा था, मैंने वो एक प्रोडक्ट बना लिया, मैंने एक फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने ये रहा मेरे पास एक एसी का रिमोट पड़ा, मैंने एक एसी का रिमोट बनाया, इसकी पूरी सर्किटिंग वगैरह मैंने करी, ठीक है, सब कुछ करा। प्रशांत मेरे फैक्ट्री में आया, प्रशांत ने देखा यार तू ये तो बहुत सही काम कर रहा है, तूने तो ये बहुत सही क्या बोलते हैं मदरबोर्ड बनाया, बड़ा अच्छा बनाया, कैसे बनाया, मैंने पूरा प्रशांत को बनाया। प्रशांत ने अगले दिन जाके इसको कॉपी कर दिया, लीगली मतलब फाइल कर दी पेटेंट, इसको प्रोविजनल पेटेंट मिल गया। 6 महीने बाद ये मेरे पास आ रहा है, कह रहा है प्रशांत कहता है आकर्षण यू कैन नॉट यूज इट, इफ यू वांट टू यूज इट यू विल हैव टू टेक माय परमिशन। अगर आप ये आगे बेच रहे हो, अगर आप ये पर्सनल यूज भी कर रहे हो और पर्सनल यूज से आपको फायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं बचत हो रही है आपके आइदर टाइम या मनी की, तब भी आपको मेरे से पूछ के यूज करना पड़ेगा, चाहे आप वॉशरूम में जाके अपना एसी चलाओ। मेरे को पता चला मैं आपके ऊपर लीगल केस ठोक दूंगा, मुझे आपके बिजनेस एसी यूनिट से पता चल जाए आपने एसी कब चलाया, फिर मैं आपसे ये पूछूंगा आपने एसी चलाया तो चलाया कैसे, क्या आपने एसी के बटन अंदर जाके ऑन करा या आपने रिमोट यूज करा? रिमोट यूज करा तो रिमोट के मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं अपने रिमोट के ऑप्शंस देख लूंगा कि आपने कब चलाया था, कैसे चलाया था, मैं तो आपके ऊपर और आपको मैं सू कर दूंगा, चाहे बनाया आपकी ओरिजिनलिटी आपकी, पेटेंट फाइल मैंने करा भैया पहले, सिंपल सीधी बात। Whosoever is filing the patent first, he'll get a added advantage, he will get the first mover advantage, simple as that, ठीक है, until unless you prove it नहीं तो जैसे आपसे कॉपी कर रखा है और आपसे कैसे कॉपी कर रखा है, सो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा। सो अगर क्या बोलते हैं मैं ये प्रूफ करूं कोर्ट में जाके कि नहीं प्रशांत मेरी फैक्ट्री में आया था, उसको मैंने पूरा प्रोसेस बताया, उसने कॉपी करा, तो कोर्ट मेरे से ही क्वेश्चन पूछेगी कि जी पहले आपने क्यों नहीं करा, आपको पेटेंट के बारे में पता नहीं था क्या, आप इतने स्टूपिड हो, आप बिजनेस चला रहे हो, आपको ये नहीं पता होता कि आपको लीगली अगर आप कुछ बना रहे हो तो आपको फाइल करना होता है। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। So research paper can be used तो as एक चीज है कि मतलब अभी कुछ दिन पहले या देखो एक कुछ न्यूज आई थी कुछ दिन पहले कि जापान ने जो पत्तल होती है इंडिया में उनका पेटेंट करवाया है, लेकिन इंडिया तो वो बहुत पहले से यूज करता आ रहा है, तो मतलब अब ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि जापान से परमिशन लें वो पत्तल यूज करने के लिए? आपको पता है आज भी बहुत सिंपल एग्जांपल, मेरे को अभी इसका नहीं पता, बट अगर लीगली प्रूव हो गया तो शायद लेना पड़ेगा। आपको पता है रेलवेज में कुछ भी होता है तो आज हमारे को किसका थप्पा चाहिए होता है, क्वीन का चाहिए होता है, डू यू नो दैट? रेलवेज में अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं आज के टाइम पे, हम आगे चीजें बना रहे हैं, जो टेंडर वेंडर पास होते हैं, जो आगे चीजें होती है, वी हैव टू टेक परमिशन ऑफ द क्वीन इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड वो द कंट्री जिसने रेलवे ट्रैक्स इन इंडिया बनाए। तो आज तक सिंपल, अगर नहीं बिलीव हो रहा है ना, ये आई एम टेलिंग यू द न्यूज, ये इजीली आपको गूगल पे मिलेगी नहीं, बट इसको खुद लॉजिकली प्रूव मैं आपको बताऊं कैसे,
सिंपल ये देख लेना 1947 तक इंडिया की कितनी रेलवे लाइंस बनी थी और 47 के बाद कितनी लाइंस बनी आज तक. यू विल गेट द आंसर योरसेल्फ. बाकी सब में इंडिया ने प्रोग्रेस करा है, बट रेलवे लाइंस में आज तक नहीं कर पाई. क्यों? उसका रीजन ही वही है, क्योंकि हर टाइम उनको इंग्लैंड की क्वीन से परमिशन मांगनी पड़ती है. बिकॉज अब आप एक टेक्नोलॉजी के ऊपर टेक्नोलॉजी बना रहे हो, आपको उसका पेटेंट बनाना है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. सॉरी, यू हैव टू. वो तो खुद एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो हर लेकिन इसको तो 75 इयर्स हो गए ना. 75 इयर्स हो गए, तो वो तो अपना उस टाइम मैंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बना लिया ना. वो तो गवर्नमेंट है, वो तो इंटरनेशनल पेटेंट आ जाता है. वो नेशनल पेटेंट भी नहीं होता. नेशनल पेटेंट इज फॉर 20 इयर्स. नो, इंटरनेशनल पेटेंट तो इट कैन बी फॉर मोर देन 20 इयर्स. यू कैन गो फॉर द रिन्यूअल and you can create your own terms and conditions. As I said, those are government people. They can create their own terms and conditions. So आज तक हम लोग उनको लॉयल्टी भी देते हैं इस चीज की. That's the whole harsh reality, but that's true. Okay, there are a couple of questions. Nitish, you have one question? Sir, I have a question a little out of this topic. Yeah, like please. they have mentioned that in IIT Delhi, they filed around 400 patents. But as a entrepreneur enthusiast, if I want to check what kind of patent they have like registered, or like if I मेरे को एक platform अगर कोई ऐसा मिले जहाँ पे मैं देख सकूं कि ये पेटेंट हुआ है, फिर मैं अपने टीम के साथ उस पेटेंट को देखूं और उसको चेक करूं, फिर उससे फिर मैं ये करूं कि इसका किस पे मैं बिजनेस मॉडल बना सकता हूँ, फिर मैं उस बंदे को रीच करता हूँ. तो ये कोई अगर ऐसा कोई कर सकते हो. ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है. मेरे को वैसे प्लेटफॉर्म का याद नहीं नाम, बट एक बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन. सिंपल टर्मिनोलॉजीज में M&A की डील्स होती है. आपने बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में भी सुना होगा. मर्जर एंड एक्विजिशंस की डील होती है कि या तो मैं आपका पेटेंट खरीद लूंगा आपसे, आई विल बाय इट, आई विल एक्वायर इट एंड देन मैं अपना बिजनेस करूंगा, या मैं आपके साथ मर्ज कर लूंगा कि एक XY एंटिटी ने ABC एंटिटी के साथ मर्ज करा और उसने एक नया ब्रांड नेम बनाया EFG, और EFG प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अब हम लोग चला रहे हैं, जिसमें 2 सब में. सो यू कैन डू इट, दैट यू कैन इजीली डू दैट. मर्जर एंड एक्विजिशन की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आर एक्चुअली डूइंग इट. एंड इसको हम लोग एक और चीज भी बोलते हैं, अगर आप पढ़ोगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके. सो इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. सो ये FITT जरूर करवाती है. अगर आप देखोगे IIT दिल्ली का जो इंक्यूबेशन सेंटर है, कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर सकते हो एक बंदे से दूसरे बंदे. या वही है, या तो दूसरा बंदा आपकी टेक्नोलॉजी खरीद सकता है, एक्वायर कर सकता है, या आपके साथ मर्ज करके आपका वो बिजनेस चला सकता है, क्योंकि उसके पास साइंटिफिक इन्वेंटर वाला दिमाग है, आपके पास एंटरप्रेन्योर वाला दिमाग है. जोड़ो, चलो बिजनेस करते हैं साथ में. यू कैन इजीली डू दैट, बट अगेन दैट पर्सन हैज टू एग्री फर्स्ट, बिकॉज आपका बिजनेस मॉडल भी उसके येस और नो पे टिका है. तो आप उसको ऐसा क्या वैल्यू देने जा रहे हो जिससे यू आर क्रिएटिंग योर ओन सेट ऑफ USP व्हिच पीपल विल अडैप्ट टू इट. एंड दीज पेटेंट्स आर पब्लिकली होते हैं सारे पेटेंट्स. ठीक है, तो आप पेटेंट्स देख भी सकते हो, उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो. जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है IP, उस पे जाके देख सकते हो. सो आप लोग इजीली यू कैन सी all of these things, so that's not an issue. Okay, couple of more questions. Rishabh, Yes. go ahead. Yes, sir. So, sir, I have a question that, like, as you said, like, if I patented in India, so, like, some people, like, something I patented in India, but outside India, people can use it. Like, if I don't patent it in other country, people can use it. And So- vice versa, like, if someone patented in USA, I can copy that product in India. And is there something called international patent as well? Yes. I'm coming to that. So Rishabh, basically, there are 2 kinds of patents. One is a national patent. Second is the international patent. Okay, the international patent is there कि internationally it is said कि वो patent जो आपने कराया डिवाइस का, या जो भी प्रोडक्ट का आपने जो करवाई, आपने जो इन्वेंशन करी, वो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं यूज कर सकता. उसकी एक इंटरनेशनल पेटेंट बॉडी होती है जो कि वेरीफाई करती है, चेक करती है. लॉयर्स होते हैं, सेट डाउन होते हैं लॉयर्स फ्रॉम across various portals, across various geographies. वो चेक करते हैं कि ओके, आउट ऑफ 210 कंट्रीज in the world, आपका इंटरनेशनली पेटेंट अप्रूव्ड है. अब इसका मैं आपको एग्जांपल, एक चीज मैं बहुत सिंपल बोलूंगा. सो हर एक स्टार्टअप, एक तो स्टार्टअप इंडिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है, एक हर स्टेट की एक अपनी स्टार्टअप पॉलिसी होती है. ओके, सो और उसको जैसे फॉर एग्जांपल, अब आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम हिमाचल, सो आई हैव वर्कड ऑन स्टेट हिमाचल प्रदेश स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी, और मैंने खुद एक पूरी पॉलिसी बनाई थी. तो मैं उसके अंदर बता सकता हूँ कि उधर क्या होता है कि आप जब डोमेस्टिकली, नेशनली आप पेटेंट फाइल करते हो, तो
2 लाख रुपीस तक जो गवर्नमेंट है वो आपको रिइंबर्स करती है। लगने को पैसा डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेंशन 5 लाख भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन 50,000 75,000। नेशनल में 1 लाख तक नॉर्मल अगर आपका पेटेंट है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं हो। जैसे हो सकता है आपने कोई रॉकेट के लिए पेटेंट कराओ, लेकिन रॉकेट का एक्सपेंसिव होती है टूल्स एंड ऑल दैट, ठीक है। बट स्टेट गवर्नमेंट कहती है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कहती है कि मैं आपको 2 लाख रुपीस तक का रिइंबर्समेंट दे दूंगी अप टू, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन उसमें लॉयर फीस भी हो सकती है इंक्लूडेड, उसमें आपकी गवर्नमेंट फीस भी हो सकती है, उसमें आपका जो प्रोडक्ट की फीस है वो भी हो सकती है, सब कुछ मिल मिला के मैं आपको 2 लाख रुपीस तक। इंटरनेशनल पेटेंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल गिव्स 10 लाख रुपीस, ओके। तो कहती है आप अगर स्टेट गवर्नमेंट के उसी स्टेट के पर्सन हो या उस स्टेट के किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो और आपने कुछ काम करा है, तो मैं आपको 10 लाख रुपीस तक मैं आपका पेटेंट फाइल करवाने का मैं आपको प्रोविजन दे सकती हूँ। आप 10 लाख रुपीस तक करा सकते हो। अब वो ना इंटरनेशनल में मार्केट वैल्यू क्या है वो मेरे को नहीं पता, मैं 10 लाख रुपीस तक आपको रिइंबर्स करवा दूँ। सो आप इंटरनेशनल पेटेंट भी करा सकते हो, बट इंटरनेशनल पेटेंट के लिए अगेन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्रॉपर रिसर्च की कोई वर्ल्ड में कोई और तो नहीं कर रहा, एंड यू कैन नॉट डू इट अलोन, यू हैव टू हायर अ लॉयर। A lawyer will take its own set of fees, 20,000, 50,000, 75,000, $1,000 तक वो भी लेगा, और $1,000 के बेसिस के ऊपर वो आपका पूरा देखेगा इंटरनेशनली कि किसने कहाँ फाइल करा है नहीं करा है। सो यू हैव टू प्रॉपरली चेक। जैसे सिंपल होता है, अगर जो 20% 30% और लोगों ने जिन्होंने रेज हैंड करा था, आप सबने अपनी कंपनी का नाम जब रखा होगा, एक तो नॉर्मल डोमेन से आपने चेक करा होगा, एक होता है कि कहीं उस नाम का कोई और कंपनी तो नहीं है, वो आपके सीए ने आपको वेरीफाई करके दिखाया होगा, ठीक है। अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी बाई चांस आपने करवाई है तो। सो जो सीए होता है या जो सीएस होता है वो आपको मेक श्योर करता है कि उस नाम की कंपनी और तो कहीं नहीं है, ठीक है। सिंपल है, कहीं मैं ओला तो नहीं है, ओला का पेरेंट कंपनी आई फॉरगॉट जो भी थी, तो उसकी कंपनी का मैंने प्राइवेट लिमिटेड तो नहीं कर रखा है, ठीक है। सो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप जब पेटेंट फाइल कर रहे हो, कौन सी कंट्री में कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और वो इंटरनेशनली है कि नहीं। थैंक यू चंद्रत्या दास, ANI टेक्नोलॉजीज, इट्स द वर्ड। ओके, अंकिता, you have one question now. Yes, sir. So you said that patent should benefit the society, then only it's granted. Yeah. So what if I come with an idea with a product that is destructive in nature? तो हम जैसे देखते हैं रसिया से हम बहुत like import करते हैं missiles or something. तो what if I come with an idea जैसे कि कोई मिसाइल या कुछ भी ऐसा मैं formulate करती हूँ that have a destructive nature? Aman, sorry, can you mute yourself? Yeah. So destructive in nature, Ankita, so missile is a product जो आपके workflow पे बनी है, ठीक है। आप अपना workflow basically पेटेंट कराते हो कि या डिजाइन पेटेंट कराते हो आप अपना, ठीक है। वो ये थोड़ी ना कि आपने एक ही प्रोडक्ट बनाया दुनिया में और उसके बाद वो कभी प्रोडक्ट बन नहीं सकता। आपने वो एक प्रोडक्ट बना दिया, एक वर्कफ्लो बना दिया, एक डिजाइन बना दिया जिसका आपने पेटेंट डाला, वो उसके बाद आप उसके मिसाइल्स के आप 10 बारी बनाओ, ठीक है। आज अगर बाई चांस इंडिया ने अपना न्यूक्लियर मिसाइल यूज कर लिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि न्यूक्लियर मिसाइल एक और वो बना नहीं सकता, बना सकता। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। Even if it's destructive in nature, it's absolutely fine if the authorities are giving permission for it at the end of the day. Okay, before going to Mudit's question, so research paper can be used as proof against patent copy. Yes, research paper can be, but again, अगर आपने उसका provisional patent करवा रखा है Mudit, then you can. Does patent have area limits? National and international borders, that's the only area limits they have. Okay, now Mudit, go on. You want to ask some question. So, sir, sometimes the patent are like distinguished under defense this. So फिर बाद में उसका बिजनेस नहीं कर सकते, तो तब क्या ऑप्शन बच जाता है? तब क्या ऑप्शन बन जाता है? सिंपल है। DRDO ने, जैसे फॉर एग्जांपल DRDO सबको पता है क्या है, राइट? जो डिफेंस सिस्टम बनाती है, तो गवर्नमेंट की अपनी डिफेंस सिस्टम का नाम DRDO है। अब DRDO ने अगर DRDO they do two things. They will either buy your product, सिंपल है। जैसे आई थिंक सो आप लोगों ने
उरी मूवी देख रखी होगी, उरी मूवी के अंदर पिजन शेप का ड्रोन यूज हुआ था, ठीक है। उसके अंदर जब ड्रोन यूज हुआ था, सो मतलब वो वैसे ये नहीं कि वो रियलिटी में ऐसा हुआ था, इट्स वाज अ फिक्शन वर्क, बट मान लो वो पिजन टाइप ड्रोन यूज हुआ था, तो अगर वो जो ड्रोन का आप लोगों ने वो ले रखा है, उसका पेटेंट ले रखा है, तो DRDO कैन आइदर बाय इट, अगेन इट विल कम अंडर एन M&A डील, क्या DRDO is acquiring your product, or probably they will be giving you loyalty for 20 years or maybe lifetime, ठीक है, depending, but आप उसको, हाँ आप आगे उसको कमर्शियली यूज नहीं कर सकते ना, आप किसी और को वो चीज बेच सकते हो, सिंपल सीधी बात है, ठीक है, बिकॉज आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डील करी है, आपने डिफेंस सिस्टम के साथ करी है, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज योर डिफेंस एग्रीमेंट, सिंपल एज दैट, बिकॉज इट विल बी अंडर द सिक्योरिटी एक्ट 1974, something on those lines. So security acts के अंदर आ जाती है, so you cannot do that. Simple सीधी बात है. Okay, perfect. So I think so patents are pretty much clear. Now coming to the second thing quickly, guys, what do you mean by copyrights? Copyrights और trademarks बहुत simple होते हैं, so I expect you all to know. But yeah, anyone, copyrights. कॉपीराइट सब पता होने चाहिए, गोली मार दूंगा मैं किसी को नहीं बताऊंगा तो। सर किसी आर्टिस्टिक चीज पे अगर हमारा राइट होता है देन वो कॉपीराइट होता है। गिव मी एन एग्जांपल, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिस्टिक? इफ आई कंपोज अ सॉन्ग देन मेरा कॉपीराइट होगा उस पे। ठीक है, परफेक्ट। एवरीवन एग्रीज टू इट? यस, नो, मे बी? कोई है नो वाला? But at it, I think copyright is not like exclusive to music or artwork. It could be anything, like copyright of anything, and we can like distribute it or like adapt it, change it accordingly. So we have the rights to do that. करेक्ट। सो सिंपल है, अगर मेरे को कोई मूवी का आगे डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है और उसकी कॉपीराइट्स मैं ले सकता हूँ, सिंपल सीधी बात। सो not just related to artistic, but yeah, there are things which falls into this category. Artistic, basically we can term it overall as an artistic, but हाँ अगर उसका business मेरे को लगता है उस artistic venture के inclusive है, तो I can do that as well. So I can copyright as well, कि मैं वो चीज की सोल एंड सोल ओनर इसका डिस्ट्रीब्यूशन का मैं हूँ और इसके मैं कॉपीराइट्स ले रहा हूँ आपसे, ठीक है। अगर आप एक मूवी के डायरेक्टर हो, आपसे मैं कॉपीराइट्स ले रहा हूँ, कॉपीराइट करवा रहा हूँ गवर्नमेंट से ऑफिशियली कि आई एम द सोल एंड ओनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स इनटू द मार्केट, ठीक है। सो अगेन दिस थिंग कैन आल्सो बी देयर। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू ट्रेडमार्क्स। गाइस, किसी को ट्रेडमार्क्स? एनीवन नोस व्हाट इज अ ट्रेडमार्क? That exclusively identified product, like if you're in a business, it differentiate from any product, like you can do a trademark, the product or service. प्रोडक्ट का तो मोस्टली पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क थोड़ी ना होता। Well, any design of logo, anything. ट्रेडमार्क किसी ब्रांड या कंपनी का हो सकता है। करेक्ट। सो ट्रेडमार्क नॉट, अच्छा जब आप पेटेंट कराते हो, पेटेंट में एक चीज फॉर श्योर होती है कि आपका नेम जरूर आता है, ठीक है, एज एन इन्वेंटर, इररिस्पेक्टिव, इवन आप कंपनी के उस पर भी करा रहे हो ना, तो कंपनी में कौन कौन लीडरशिप रोल में इन्वॉल्व था। ओवरऑल मान लो मैं अपनी कंपनी के नाम से करा रहा हूँ, मान लो मैं IIM काशीपुर के नाम से पेटेंट रजिस्टर करा रहा हूँ, तो उस पेटेंट में फॉर श्योर क्या बोलते हैं, लोगों के प्रोजेक्ट्स में जिसने वर्क करा उनके नेम जरूर आएंगे। ट्रेडमार्क में ऐसा नहीं होता। ट्रेडमार्क में मोस्टली आपके ब्रांड नेम, ठीक है, उसमें इंडिविजुअल नहीं आता, उसमें क्या तो कंपनी आ सकती है या एक ब्रांड नेम आ सकता है और उसका ट्रेडमार्क होता है मोस्टली। कॉपीराइट्स और पेटेंट्स में ऐसा नहीं होता। ट्रेडमार्क में ऐसा होता है कि जहां पे आप ब्रांड के बारे में बोल रहे हो। सो अगर आप देखोगे छोटा सा T बना होता है एट द एंड ऑफ एवरी लोगो जिन्होंने कराए होते हैं। एंड गाइस, ट्रेडमार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टार्टअप, प्लीज मेक श्योर। और जब आप ट्रेडमार्क के लिए फाइलिंग दे रहे हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी कलर का आपका आपने लोगो बनाया है, उस कलर का कोड भी आपको सबमिट कराना पड़ता है, ठीक है। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये नहीं कि आज मेरा कलर, अगर मैंने मैकडॉनल्ड्स का कलर बनाया, मैंने येलो और रेड करके आके बना दिया, तो मैं उसका अगर मैं कल को मैं चेंज करना चाहूँ हल्का सा येलो, तो मेरे को उनको फिर फाइल देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, फिर मेरे को उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी दैट आई एम यूजिंग इट। अगर वो कल को किसी और ने करा तो प्रॉब्लम है,
ठीक है, तो सिंपल है। आज जैसे बर्गर किंग के नाम से एक बहुत बड़ा जॉइंट है, बट आप देखोगे बहुत सारी जगहों पे लोगों ने अपनी शॉप्स खोल रखी है बर्गर किंग के नाम से, नॉर्मल शॉप्स, नॉर्मल, कोई यहाँ से निकलोगे कहीं गली गली में बर्गर किंग लिखा होगा, बट वो बर्गर किंग इंटरनेशनल नहीं हो सकता, राइट? वो बर्गर किंग नॉर्मल होगा क्योंकि उसका लोगो अलग होगा। लोगो वो नहीं चुरा सकता, नेम वो शायद फिर भी चुरा ले, लोगो नहीं चुरा सकता, ठीक है? लोगो इज वेरी वेरी एसेंशियल। ओके, सो प्लीज अपने डिजाइन जो भी आप, मतलब स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली आप कुछ भी डिजाइन बना सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बट जैसे आपको लगता है कि अगेन दिस इज अ प्रैक्टिकल नॉलेज आई एम गिविंग यू, नो थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे आपको लगता है आपका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, 10 लाख से ऊपर आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग स्टार्टअप हो गया, प्लीज गो फॉर ट्रेडमार्क ऑफ योर लोगो। प्लीज चुरवाने मत देना, यू विल फेस अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर दैट, क्योंकि अगर आपका ट्रेडमार्क मैंने ले लिया, कल को 10 लाख की कंपनी का एक तरीके से उस डिजाइन का ओनर मैं बन जाऊंगा जो कि आपके कस्टमर्स के पास थे, तो फिर आप या तो मेरे को 11 लाख देकर बेरे मिनिमम मेरे से छुड़वाओगे, या जो भी मैं प्राइस पाऊंगा आपको मेरे से छुड़वाना पड़ेगा, या आपको अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सॉरी जी मेरे पास ये ट्रेडमार्क नहीं था, ये लोगो किसी और ने कॉपी कर दिया, मैं चेंज कर रहा हूँ, या मैं अपना लोगो, आप कुछ फिर मार्केटिंग, इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन रन करोगे, ओके वी आर चेंजिंग आवर ब्रांड स्ट्रेटेजी। सो कोई बोले ना कि ब्रांड स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है, गो फॉर इट। कुछ उनके साथ घपला तो नहीं हुआ, कुछ उनके साथ फ्रॉड तो नहीं हुआ, कुछ किसी ने उनका कुछ लोगों को ले तो नहीं लिया। सो बहुत चीजें होती है मार्केट में। व्हेनेवर समवन सेज ना हमने ब्रांड चेंज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका एक्चुअली दिमाग में कुछ इनोवेशन है, हो सकता है कि उनके साथ कुछ बहुत बड़ा लीगली कुछ चैलेंज हुआ है, ठीक है? 90% ऑफ द केसेस में लीगली कुछ ना कुछ इश्यू होता है, वरना कौन अपना ब्रांड चेंज करेगा? लेट्स इमेजिन मैं 10 इयर्स बैक 20 इयर्स बैक मैंने एक इतना अच्छा लोगो सोचा और मैं वो लोगो चला रहा हूँ, लोगों को पसंद आया हुआ है, लोगों को ट्रस्ट है उस पर्टिकुलर लोगो पे, पब्लिक हैज द ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर लोगो, और मैं 20 साल बाद चेंज कर दूं, क्यों भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे किसी ना किसी पेपर वर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया और मेरे को अच्छी खासी मेरी हालत टाइट कर दी गई है by that particular person. So it happens. Okay. Okay. So I think so. हमारे 1 hour तो हो गया, but I will open 10 minutes more for Q&A purposes. I want you to ask me as many questions. And guys, don't worry कि वो patents या copyrights या trademarks के ऊपर नहीं होगा. You have questions related to entrepreneurship, I'll be more than happy. You have questions related to your own set of startup, I'll be more than happy. But I just want you to interact with me. अभी तक 32 में से मेरे को अभी तक सिर्फ 10 लोगों के नाम याद आए हैं, 10 से ज्यादा मेरे को अदर 22 तो मैं बोल रहा हूँ या तो उनको मैं बहुत बोरिंग लगाऊं, इनफैक्ट आई वुड से द अदर वे अराउंड, मुझे वो लोग बहुत बोरिंग लगे हैं, ठीक है? आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, कैमरा वैमरा भी ऑफ करके ठीक है? सो guys, please ask me any kind of questions you have related to the topic which we had today, related to entrepreneurship, related to startup, related to any other stuff you want to ask, okay? And just the only one thing, जब भी question पूछ लो smile करके पूछ लो, ठीक है? Because I love to see you guys smiling, I love to see you guys happy. Stress मत लो, ठीक है? I'm in fact, you know, I'm more younger than you. I'm just sweet 16-year-old boy. ठीक है, मैं झूठ अच्छा बोल देता हूँ, बट या ठीक है। सो प्लीज आस्क मी, थ्रो क्वेश्चंस ऑन मी, कम ऑन। सर एक्चुअली जब हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कोई प्रोडक्ट के लोगो के साइड में टीएम लिखा रहता है, कभी कभी आर लिखा रहता है, तो बोथ आर डिफरेंट और बोथ आर सेम? बोथ आर डिफरेंट। ट्रेडमार्क टीएम इज डिफरेंट, रिजर्व्ड आर इज डिफरेंट। इट्स अंडर ट्रेडमार्क ओनली, बट आर मतलब सिंपल आप ले लो, आर का सिंपल मैं आपको बोलूंगा प्रोविजनल पेटेंट जैसे होता है ना, कि अभी मैं उसका अभी के लिए मेरे को पूरा ट्रेडमार्क मिला नहीं है, बट अभी के लिए वो रिजर्व पे है, अभी मैंने उसका मतलब अभी वो यूज भी नहीं कोई कर सकता, इट्स इन प्रोसेस, आई विल गेट द ट्रेडमार्क सून, बट आई हैव नॉट गॉट इट राइट नाउ। सिंपल एग्जांपल, बहुत लेमैन एग्जांपल में बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकली बहुत अलग अलग बोली जाएगी, बट ये सिंपल एग्जांपल है। ओके, एनीवन एल्स? अरे पूछ लो, नहीं खाऊंगा मैं तुम लोग। Any questions, guys? Or Britika? Yeah. Sir, any interesting story or event regarding the founders or startups that you can share with us?
Yeah, there are many interesting stories. Probably if I'll tell a story, it will take me 1 hour more. But there have been many interesting stories. Trust me, मतलब मैंने एक ये MP का ही एक स्टार्टअप था. I remember मैं अभी जब मैंने स्टार्टअप इंडिया यात्रा प्रोजेक्ट मैंने करा था, I remember वहाँ पे 2 स्टार्टअप्स आ गए. उन्होंने ना कोई टॉयलेट सिस्टम, लू सिस्टम उन्होंने बना रखा था सॉफ्टवेयर के थ्रू, और दोनों एक दूसरे से लड़ी जा रहे, इतना लड़े हैं ना वो, आई कांट टेल यू. और उसमें जो एक्चुअली जिसने कॉपी करा था उसने पहले पेटेंट ले लिया, तो बस वो फर्स्ट वाला बेचारा रोता रह गया. उसने गवर्नमेंट को बोला कि मेरा ये चुरा है वो चुरा है. सॉरी ब्रो, यू legally you don't have the rights anymore. I'm sorry, you're gone with the wind. You didn't go for the paperwork at start. You should have been there. So वो ये चीज बहुत कॉमन है और बहुत स्टार्टअप्स में होती है कि उसने मेरा आइडिया चुरा लिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया. Things happen. See, legally you just have to be very see, एक चीज मैं बोलूंगा, and I want you guys again, IIM वाले हो, बिजनेस वाले हो, you are not a मुझे नहीं पता कितने इंजीनियर्स आ रहे हैं बैकग्राउंड से, बट इवन इफ यू आर एन इंजीनियर, forget that theory. और जो फैमिलीज भी बोलती है, जो प्रोफेसर्स भी बोलते हैं कि यू, वो जोकर मूवी में भी आया था, इफ यू आर गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री एंड ऑल दैट. तो प्लीज ये चीज भूल जाओ कि आप एक ही स्किल सेट रखो. if you want to become an entrepreneur, if you have to become a leader in corporates, okay, or if you really have to go into that leadership management role, guys, you have to sail on every particular boat in the company which the companies have the process in. HR हो, मैनेजमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, मतलब कुछ ना कुछ उसका 20% तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है. इवन अगर वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन, SaaS ड्रिवन कंपनी है, तो वो SaaS कौन से प्लेटफॉर्म पे चल रही है, आपका फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर क्या कर रहा है. मान लो मेरा CTO कल को बीमार हो जाए, मैं CEO हूँ कंपनी का, तो मेरे को तो अपने डेवलपर से जाके पूछना पड़ेगा ना, यार ये क्यों नहीं डेवलप हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, इसको कितना टाइम लगेगा, उसमें कौन सी एल्गोरिथम्स लग रही है, मुझे तुम्हारे को हेल्प चाहिए तो मेरे को कौन सा बाहर क्या बोलते हैं स्किल सेट वाला बंदा लाके दूं मैं तुम्हारे को, ताकि वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए. तो मेरे को ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो. ठीक है, प्लीज फॉरगेट दैट कि ओके यू जस्ट हैव वन स्किल, यू शुड हैव मल्टीपल स्किल्स इन योर ब्रेन. यू शुड know how to sail on multiple boats at the same time. You should know that. That's very important. Okay, I hope this answers Aditi. Questions in the chat box. Okay, there are questions in the chat box. Okay. Okay, sir, I would like to integrate jewelry with Metaverse. Insights on it? Yes, you can. Why can't you? Udit, you can go ahead, do it. But पहले इसका business model बनाओ. क्या करोगे इसमें, इंटीग्रेशन कैसे करोगे, क्या कोई और ज्वेलरी बिजनेस कर नहीं रहा मेटावर्स में, और आप दिखाना कैसे चाहते हो, क्या आप एक्चुअली में एक शॉप या लैंड ओन कर रहे हो मेटावर्स में, या आप मेटावर्स में एक क्या बोलते हैं ज्वेलरी बना के आप बेचना चाह रहे हो, या आप मेटावर्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस करवा रहे हो, जो कि आजकल लोग करवा रहे हैं, नॉट दी ज्वेलरी का ट्रांजैक्शंस बट लैंड की ट्रांजैक्शंस थ्रू मेटावर्स. क्या आप एक्चुअली में जैसे मेटावर्स एंड फिनटेक को लोगों ने जोड़ दिए, क्रिप्टो करेंसी को जोड़ दिए, क्या आप उसके थ्रू करा रहे हो, कैसे, मतलब अगेन देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट no worries, you can integrate your jewelry with metaverse. But again, are you aware about how metaverse works? Do you know uski financials kaise work karti hai? Then jewelry mein what kind of jewelry you're talking about? Now jewelry mein bhi again gold hai, diamond hai, kaun se products hain uske andar, again you have to check copper aa raha hai kya hai, matlab usme aur jewelry ke kaun se types aa rahi hai. ठीक है, तो उस फिर अगर उसका पेटेंट कॉपीराइट, आप ज्वेलरी टर्मिनोलॉजी बहुत बड़ा वर्ड है, मेटावर्स टर्मिनोलॉजी बहुत बड़ा वर्ड है. ठीक है, उसके अंदर प्रोसेसेस क्या है, मे बी वी कैन डिस्कस इट. यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब आई एम ऑन ऑलमोस्ट ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स, एंड टचवुड मेरा नाम बहुत यूनिक है, सो यू विल फाइंड मी ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडियाज इजीली. Instagram, LinkedIn पे आई एम वेरी मच एक्टिव, सो यू कैन message me over there anytime. I'll respond it to you. Okay, like Tanishq is doing right now. Mohit again, तनिष्क जो कर रहा है वो स्पेसिफिक एक जगह पे कर रहा है. ठीक है, उसका अपना, अगेन मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो अगर वो गोल्ड पे कर रहा है तो वो गोल्ड पे फोकस कर रहा है, अभी वो डायमंड इंक्लूड नहीं कर रहा है. अगर वो डायमंड इंक्लूड करेगा तो उसको और 10 चीजें डालनी पड़ेंगी. तो देर मतलब आई एम नॉट श्योर तनिष्क कैसे कैसे कर रहा है, क्या क्या डिटेल्स, मे बी यू कैन शेयर सम लाइमलाइट, आई कैन टेल यू हाउ ही इज डूइंग, बट अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ.
ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक सो ज़ारा वाज द वन फर्स्ट आउटलेट जिसने मेटावर्स में अपना शोरूम खोला था कि लोग कपड़े पहन के लोग चूज कर सकते हैं शोरूम का एंड ऑल दैट. तो आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ज़ारा वाज द फर्स्ट वन इन द एंटायर वर्ल्ड जिन्होंने अपना शोरूम बनाया था, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करके मेटावर्स के थ्रू एंड पीपल कैन बाय इट. मतलब उनको लगे कि मैं ज़ारा के आउटलेट में ही हूँ, ठीक है, तो आई कैन बाय. अब उसमें तो सिर्फ वो एक पिक्चराइजेशन कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे. That is not that people are going to buy क्या बोलते हैं from metaverse or something like that. उसके अंदर तो मतलब they are just playing around with the technology कि उन्होंने एक ऐसा यूनिवर्स बना दिया कि आपको लग रहा है हेडसेट बना के कि आपको लग रहा है आप ज़ारा के एक्चुअली आउटलेट पे हो, आपने एक ड्रेस चूज करी, जब आप उस पर क्लिक करोगे वो आपको वही ड्रेस वेबसाइट पे लेकर जाएगा. दैट्स इट, नथिंग एल्स देयर. उनको ट्रांजैक्शंस तो वो रियल टाइम ही करवानी पड़ेगी. सो दैट्स समथिंग ऑन द सिमिलर लाइंस. Okay, so yeah, any other question? Okay, Rishabh, you have one question. Yes, sir. So like as a startup, we have like scarce resources. So like we don't know whether product in future going to be big or not. We don't know whether if we patented some product, it will be beneficial in future or not, and it required a like huge amount, like a good amount to be get patented or getting trademark. So how do we know that like we should go for trademark or patent for that product or not? Like, so again, simple, Rishabh, like इसका बहुत सिंपल एक एग्जांपल रहता है कि एक प्रोडक्ट है आपका. सी अगेन कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स में बहुत मेजर डिफरेंस. कॉपीराइट्स तो चलो भूल जाओ, जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हो कॉपीराइट्स मोस्टली नहीं होते. अगेन अगर आप उस प्रोडक्ट को आगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू बेचना रहे हो तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी, ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स. पेटेंट्स आप कराओगे अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रोसेस पे, ठीक है. जो ट्रेडमार्क होगा वो आपके डिजाइन पे या लोगो पे या ब्रांड नेम पे होगा. दैट्स द सिंपल आंसर. I hope it is clear. Yes, sir. And one more question, sir. Like, I like a product. Like I was watching Shark Tank Australia, and they have patented that product in Australia and USA. So, like, I love that product. So, can I like start that product? Like, started that product in India? Like, they didn't patent it in India. Yeah, and अगर they haven't patented in India, then you can. उनका कोई international patent नहीं है. If they haven't not taken international patent, you can go ahead and create that product in India. No problem. And बहुत सारी companies ऐसे ही करती हैं. And can I also patent that product in India? Like, if they patent in India, yes. Patent in India, yes. Patent in international, might not. Patent in India, yes. Patent in international, might not. अगर international patent मिल भी जाएगा 210 में से 208 countries में बेच सकोगे, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में, क्योंकि उन्होंने वहां का पेटेंट ऑलरेडी ले रखा है. Simple. Thank you. Any more question, guys, or we are done for the day? अरे बोलो, पूछ लो. I am वालो कैट में तो ले आया 98-99 परसेंटाइल. यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं. इंटरव्यूज में भी बैठ गए होगे सारे के सारे खुश खुश होके. इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस पूछूं मैं, हैं? सर ओके. में प्रज्ञान राय ने एक क्वेश्चन पूछा. प्रज्ञान राय, वेयर इज प्रज्ञान राय? कहाँ है प्रज्ञान? सर, कैन यू गिव योर इनसाइट अबाउट द क्लाउड किचन बिजनेस इन इंडिया एंड इट्स फ्यूचर? प्रज्ञान, क्लाउड किचन इज अ मिथ. सिंपल. क्लाउड किचन का मतलब क्या है? क्लाउड किचन इज अ फैंसी नेम गिवन टू अ बिजनेस रनिंग फ्रॉम योर ओन होम, ओन प्लेस. सिंपल. क्या है क्लाउड किचन? तुम यहाँ पे, मैं इतनी सी जगह, ये यहाँ पे मैं बैठा हूँ इतनी सी जगह पे, मैंने यहाँ पे तवा बना दिया, मैगी बना दी, एप्लीकेशन के थ्रू मैं बस ऑनलाइन ऑर्डर ले रहा हूँ, या फोन करके लोग मेरे को फोन कर रहे हैं कि आकर्षण हमारे को ये भेज दो. मैंने यहाँ से उठा के अपने डिलीवरी बॉय को भेजा और बोल दिया, इसको टर्मिनोलॉजी दे दी, इट्स अ क्लाउड किचन. क्लाउड किचन क्या? फोन के थ्रू किचन चलाना. दैट्स इट. मतलब इट्स गुड टू हैव, यू कैन डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट ये सालों से चल रहा है. बस आप टेक्नोलॉजी जोड़ रहे हो इसके साथ और कुछ नहीं कर रहे. एक एप्लीकेशन बना रहे हो या जोमेटो स्विगी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, जो कि एक नॉर्मल रेस्टोरेंट बिजनेस, और कल को आपको चलाना है. Every right now 90% of the cloud kitchens which I have particularly seen, to be very honest, and successful ones as well, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स खोल लिए ऑफलाइन. कोई और ब्रांड से खोल लिए होंगे या उसी ब्रांड से खोल लिए होंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उन्होंने खोल लिया. क्यों? उनको भी पता है यार, ऑफलाइन रेस्टोरेंट, ऑफलाइन फूड बिजनेस का जितना धंधा चलता है वो कहीं और का नहीं चलता. सिंपल है यार. मतलब अगर मैं बहुत सिंपल, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर फ्रॉम दिल्ली, या दिल्ली के अराउंड आप लोग कितना है, बट या दिल्ली क्या
सिंपल, हल्दीराम्स खाने बनाने की जो चीज है, खाना ही तो खिलाता है। क्या उसने क्लाउड किचन खोला है? उसने क्लाउड किचन टेक्निकली नहीं खोला, बट उसने क्लाउड किचन का यूसेज वो वैसे ही कर रहा है कि घर पे बैठे बैठे हल्दीराम्स का मुझे एक बढ़िया सा रसगुल्ला खाना है तो मैं ऑर्डर कर दूं, सिंपल आ जाएगा मेरे पास। उनकी अपनी एप्लीकेशन से अगर मेरे को कुछ मंगवाना है तो मैं मंगवा सकता हूँ। Technically, they are not a cloud kitchen, but the services which they are offering is something similar to what cloud kitchen does. Simple as that. So cloud kitchen, yes, you can go ahead, create the cloud kitchen, but again, यार खाने के मामले में ना सिर्फ एक चीज होता है कि सामने वाले बंदे को पसंद कैसे आ रहा है। मेरे को नमक ज्यादा तेज पसंद है तो मेरे को नमक ज्यादा तेज पसंद है, मेरे को नमक कम तेज पसंद है, मेरे को नमक कम तेज पसंद है। फूड में इट्स ऑल अबाउट द डेवलपिंग द टेस्ट। यहाँ पे इनोवेशन इज नथिंग, यहाँ पे एक शेफ के ऊपर बहुत मैटर करता है, आपके वर्कफोर्स के ऊपर बहुत मैटर करता है, आपके टाइम मैनेजमेंट पे बहुत मैटर करता है। सो यहाँ पे फूड बिजनेस में इट्स लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर आप अंडर अनलेस आप अपना खुद का एक फूड प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, जैसे नेस्ले ने अपना पाउडर, मिल्क पाउडर क्रिएट करा हुआ, सो दैट्स अ डिफरेंट देन यू आर नॉट इनटू क्लाउड फूड बिजनेस, देन you are into a manufacturing business altogether. It's an FMCG product. In Dubai, many restaurants have come together on a single land of peace and serving via delivery. Can this model be copied in India as landowners also can rent to? Yes, sir, you cannot. Why can't you? खोलो एक एप्लीकेशन, करो, लोगों को इकट्ठा बना दो एप्लीकेशन में, लोगों को जॉइंट वेंचर के थ्रू शुरू कर दो। Who is stopping you? No one is stopping you. No one stops you for any kind of idea. And one more myth: ideas can never be patented, never be copyright, never be a trademark. Please get it. कोई बहुत बढ़िया आइडिया लगा, आपने 10 लोगों से बात करी, वैलिडेट कर लिया, आपने बोला कि सर आपने मुझे वैलिडेशन करने को बोला तो मैंने वैलिडेशन कर दिया, अब मैं इसका पेटेंट करना चाहता हूँ। नो, आइडिया के ऊपर वर्क कौन करेगा? प्रोविजनल पेटेंट भी प्रोसेस के थ्रू बनता है, जो प्रोसेस आप एक प्रॉपर ऑटोमेशन टूल के थ्रू बना के आप उनको दोगे, या एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उनको कैड के थ्रू बना के दे रहे हो। सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर आपने वो प्रोसेस नहीं बनाया, आपने उसका डिजाइन नहीं बनाया, आपने आगे प्रोविजनल पेटेंट दे दिया, 1 साल बाद उस आइडिया पे आपने वर्क नहीं करा, वो कहेगा यार तुमने मेरे को सी बना दिया, ओके बाय टाटा, मैं भी अब तुम्हारे को सी बना रहा हूं, बाय। इट्स लाइक दैट। सो सिंपल। ओके, आइडियाज कैन बी एनीथिंग गाइस, ओनली depends upon how you launch it, why are you launching it, and for whom you are launching it. That's the whole point. And patents, मैं वही बता रहा हूँ, patents are good to showcase in your valuations, IPs are good, patents, copyrights, trademarks are good to have, but essential for startup, maybe not, depending upon what kind of startup you are. But the foremost important thing is your financial model. Simple as that. Work on your financial model from start, कि किसको बेचना है, कैसे बेचना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने अगेन शार्क टैंक कोई भी देखा होगा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कोई भी देखा होगा, सब यही पूछता है आपका प्रॉफिट रेशियो क्या है। ठीक है, पेटेंट से ज्यादा ये क्वेश्चन होता है कि प्रॉफिट रेशियो क्या है, लॉस रेशियो कितना है, कितना आपकी इन्वेस्टमेंट है। सो फाइनेंशियल्स के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क करना। नहीं भी पेटेंट है ना, आप कल को अगर आपका पैसा अच्छा चल रहा है, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, you can acquire that particular patent. And एक बहुत अगेन एक इंटरेस्टिंग लास्ट स्टोरी बताऊंगा। जियो नेक्स्ट हब करके रिलायंस का एक इंक्यूबेशन सेंटर है बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। You know, every year they take 30 startups out of like 3000 applications. 30 startups को वो कनेक्ट लेते हैं अपने इंक्यूबेशन सेंटर पे। And you know what they do? Out of 30 applications, 30 startups, they buy 28 startups के either services or products. Because अंबानी जी is अंबानी जी, सिंपल है। एलेक्सा क्या लगता है, मतलब किसने बनाया एलेक्सा? Amazon ने थोड़ी ना बनाया, जेफ बेजोस ने खुद थोड़ी ना वो बनाया एलेक्सा। नो, एलेक्सा किसी और ने बनाया, उसने खरीद ली, पैसा था। सिंपल, एक स्टार्टअप नहीं बनाया था एलेक्सा, उसने खरीद लिया। सिंपल है। अगेन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, अगेन ग्रेट स्टोरी टू सी। इंस्टाग्राम एक सॉफ्टवेयर बनाया, 2 लोगों ने बनाया, फेसबुक ने खरीद लिया। फेसबुक कहता है ओके, आई हैव मोर मनी देन यू, आई कैन बाय योर प्रोडक्ट, आई विल गिव यू लॉयल्टी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यू लेट मी ओन दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप। Elon Musk is eager to buy Twitter, eager, but he is unable to buy। वो तो चलो कुछ उसके वैल्यूएशंस और ट्विटर में जो झोल चलता रहता है, फ्री में लोग
फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं एंड डेटा एनालिटिक्स की वजह से उसकी लॉ प्रॉब्लम चल रही है, वरना अदरवाइज तो Elon Musk is like crazy to buy it because उसके Elon Musk के एक ट्वीट से crypto market can be crashed or crypto market can go high. I'm sure जो आप लोगों से crypto investors है, they know about this and they would have seen it. Cool guys, I think so. We are all good to go, and thank you so much for being a wonderful audience. You 28 Yes, sir. people. Thank you so much for the insightful session. And the session was very useful in understanding the need of patenting and protecting our intellectual property. Like you said, that which is one of the most big asset of our startup. And the factors that you have told us will be all keeping it in mind for applying for a patent, such as its utility, the market, the commercial value, and its social value. And we all are thanking you, sir. We'll be looking forward to hear from you in many other sessions. Thank you so much. Perfect. Thank you so much, guys. And in case, again, anyone wants to connect with me, more than happy to connect over the social media. But otherwise, I think so. I am connected with Bitika personally. So, Bitika, in case someone actually needs my help, ये नहीं सबको WhatsApp नंबर बांट देना, पता चले मेरा किसी टॉयलेट के पीछे नंबर बटा हुआ है, ऐसा मत करवाने देना प्लीज. किसी को actually need है, so they can probably take my number and they can connect with me personally. Otherwise, guys, social media pe I am there. You need any kind of help in terms of your startup, I'm more than happy to help you. Sure, sure. Thank you. Thank you so much. Perfect. Thank you, guys. All the best. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir.